Thank you. Right. Because you people don't understand, we have to record the same things again also. Again, we have to devote more time. That is why these things are more important. Okay. Anyhow, yes, beta, Karan, if you have to get entangled in these things, then better to be at home. Now, next is there are three types of exchange rate systems which are prevailing, which were prevailing. First is, you may note down, they are given in the book also. They are fixed exchange rate system. Second is flexible exchange rate system. And third is managed floating exchange rate system. Names are already given. Okay. Now, one by one, as per the revised syllabus, which has been given by the board now we are supposed to do their meanings only. ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग एंड इसके थ्री सिस्टम्स देयर मीनिंग्स, बस ये करना है हमने. ठीक, तो वी विल कीप रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पार्ट ओनली, जितना हमें रिक्वायर्ड है. नाउ आउट ऑफ दैट, फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फर्स्टली यू अंडरस्टैंड, देन आई विल डिक्टेट फ्यू लाइंस आल्सो. तो नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस सिस्टम, अंडर दिस एक्सचेंज रेट, ये जो अभी हमने किया था $1 इज इक्वल टू इतने इंडियन रुपीज, दिस एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, authority of the country. Government decides ki how many Indian rupees need to be given in order to buy $1. How many Indian rupees are required to be given for buying 1 English pound या for one any other unit of world currency, कोई भी हो सकती है. ठीक है, तो government of the country, establishment of the country, authority of the country decides कि how many units of Indian currency are to be given. That means this exchange rate system में exchange rate is fixed by the government of the country. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, in this system further, why does government do this, then it becomes the responsibility of the government to stabilize the value of exchange rate. Stabilize का मतलब है कि as we have written $1 is equal to 74 rupees, तो गवर्नमेंट ने ध्यान रखना है कि ये 74 रुपीज के आसपास एडजस्ट रहे, बार बार इसमें फ्लक्चुएशंस ना हो. अगर फ्लक्चुएशंस होती हैं तो देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन दिस स्टेबिलिटी, कि इसके ऊपर टिके रहें, इसके ऊपर स्टेबल रहें. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. क्यों ड्यूटी है, बिकॉज गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट ही डायरेक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है. ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर फिर फर्दर दिस सिस्टम फर्दर हैज टू पार्ट्स, मतलब टू वेरिएंट्स, या इसके अंदर टू सिस्टम्स आ जाते हैं. वन इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, आपके बुक में नीचे एक बॉक्स में दिया हुआ है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. सेकंड इज ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ठीक, now gold standard system mein, now you please note down 2-3 lines in simple words that you can note down. Gold standard system, according to this system, gold was taken as, according to this system, gold was taken as the common unit of parity. Those who are at home, they are also advised to note down. According to this system, gold was taken as the common unit of parity between currencies of different countries. Gold was taken as the common unit of parity, P-A-R-I-T-Y. Common unit of parity between currencies of different countries. Full stop. Each country defined the value of its currency. Each country defined the value of its currency in terms of gold. Each country defined the value of its currency in terms of gold. This system was also known as, last line, this system was also known as mint par value of exchange. Mint, M capital, M-I-N-T. Mint par, P-A-R, mint par value of exchange. Mint par value of exchange or mint parity. Or mint parity. Okay, अब question arises, mint parity क्या होता है? Mint parity, it does not mean anything else. It means the value of a currency in terms of gold. किसी भी currency की gold की terms में क्या value है, क्या उसका judgment है, that is called assessment है, that is called mint value.
अदरवाइज ऑल्सो यू वुड हैव सीन इन योर प्रीवियस बुक्स ऑल्सो, आमतौर पे वर्ड आ जाते हैं मिंटिंग ऑफ क्वाइंस, है ना। तो क्वाइंस को छापना नहीं कहते, क्वाइंस को इशू करना, पब्लिश करना नहीं कहते हैं। क्वाइंस के लिए हमेशा मिंट वर्ड यूज किया जाता है, तो वो इसी से फैशन में आया है वर्ड। मिंट का मतलब क्वाइंस को बनाना, तो क्वाइंस हमेशा मेटल से ही होते हैं, तो मेटल से क्योंकि ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो मिंट वर्ड वो पॉपुलर हो गया। मिंट पैरिटी मतलब गोल्ड की टर्म्स में क्या वैल्यू है, ठीक। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, अगर है हमारे पास $1 is equal, you can note down this example, 2 grams gold, ठीक है। कोई दो करेंसीज हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल one US dollar is equal to 2 grams of gold and 1 English pound is equal to 4 grams of gold. अब हमने ये गोल्ड की टर्म्स में वैल्यूज का आपस में देखना है कि वो कैसे इक्वल, वो कैसे पैरिटी मतलब इक्वालिटी के ऊपर ला सकते हैं, बराबरी के ऊपर ला सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 4 ग्राम गोल्ड लेने के लिए कितने US डॉलर चाहिए? $2 चाहिए। अगर $1 का 2 ग्राम गोल्ड है तो 4 ग्राम गोल्ड आ जाएगा $2 का। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 1 पाउंड इज इक्वल टू 2 US डॉलर। अगर ये 4 आता है, 4 ग्राम आता है, 1 US डॉलर का 2 ग्राम गोल्ड आता है, तो 4 ग्राम गोल्ड हो जाएगा $2 का। इसका मतलब ये दोनों करेंसीज को अगर कंपेयर करना हो, इनका एक्सचेंज रेट देखना हो आपस में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो 1 US डॉलर के बदले में one has to make payment of 2 US dollars. तो जब ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता था, मोस्टली दिस सिस्टम वाज प्रेवलेंट फ्रॉम 1870s टू दिस टिल दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-15 तक ये सिस्टम ज्यादा ट्रेंड में था। बट लेटर ऑन आफ्टर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई। इंग्लैंड थोड़ा सा अर्लियर, इंग्लैंड वाज द अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आजकल बोलते हैं ना सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो पहले इंग्लैंड वाज द सुपर पावर। बट आफ्टर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर उसका रोल गॉट डिटीरियोरेटेड, थोड़ी सी उसका इंपॉर्टेंस कम होनी स्टार्ट होगी, एंड साइड बाय साइड यूएस वाज इमर्जिंग एज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी हम बोलते हैं ना सुपर पावर कौन सी है वर्ल्ड की, तो अमेरिका को बोला जाता है। तो उसके बाद फिर अमेरिका का क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रोल इंक्रीज हुआ, तो फिर क्या किया गया, गोल्ड के केस में फिर क्या होता है, गवर्नमेंट्स हैव टू मेंटेन द होल वैल्यू ऑफ देयर करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, मतलब उतना गोल्ड का स्टॉक रखना पड़ता है। जब हम गोल्ड के साथ उसको रिलेट करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास जितनी करेंसी है उतनी वैल्यू के बराबर ईच टाइम एवरी टाइम गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द स्टॉक ऑफ गोल्ड। एंड जब सारे कंट्रीज ऐसे करेंगे, तो गोल्ड इतनी प्रेशियस मेटल है कि भाई ये नहीं कर सकते सारे कंट्रीज अनलिमिटेड स्टॉक्स ऑफ गोल्ड करें, इतना तो नहीं है दुनिया में, हर एक को चाहिए। तो फिर ये प्रॉब्लम्स मतलब आनी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद है कि इस सिस्टम में गोल्ड के साथ भी पैरिटी की जा सकती है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब प्रॉब्लम्स फेस हुई, तो फिर 1944 में एक प्लेस है ब्रेटन वुड्स इन यूएसए, इन अमेरिका में एक प्लेस है। तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस की एक मॉनिटरी कॉन्फ्रेंस हुई, एक मीटिंग हुई। तो वहां पर जो एग्रीमेंट किया गया उसको नाम दे दिया जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम, और उसी को कह दिया जाता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। एडजस्टेबल पेग का मतलब, पेग वर्ड का मतलब यहाँ पर है व्हेन ए करेंसी वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ सम अदर करेंसी, किसी और के साथ जोड़ के, किसी और के साथ रिलेट करके जब वैल्यू को डिसाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेग्ड सिस्टम। ये जो फिक्स सिस्टम है, इट्स रिटन इन द बुक, इट इज आल्सो नोन एज पेग्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। पेग मतलब किसी और के साथ रिलेट करना, उसको जोड़ना। तो फिर क्या हुआ कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या किया गया, आईएमएफ एस्टेब्लिश हुआ 1944 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसी मीटिंग के रिजल्ट के तौर पे इट वाज डिसाइडेड कि भी एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विच वुड बी हेल्पिंग ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लोन प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी तरह की एड के लिए, या टू कीप ए चेक ऑन द मॉनेटरी सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सचेंज रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो आईएमएफ बनाया गया। अब उसमें क्या किया गया, नाउ यू प्लीज राइट डाउन फ्यू लाइंस, पहले लिख लीजिए। According to this system, Bretton Woods system, all currencies were related to US dollar. All currencies were related to US dollar या American dollar, which ultimately was convertible into gold. Which ultimately was convertible into gold. Full stop. US dollar was assigned. US dollar was assigned gold value at a fixed price.
US dollar was assigned gold value at a fixed price, full stop. Value of one currency in terms of US dollar, value of one currency in terms of US dollar ultimately implied या meant value of that currency in terms of gold. I am repeating this line. Value of one currency in terms of US dollar ultimately implied value of that currency in terms of gold. Okay, but this much is enough, because in your book lines are not given very in a very simple language, or little bit complexity has been created. There is no need of that. So value of one currency was determined firstly in terms of US dollar, which was further related to this gold value. इसका मतलब क्या है? If we want to understand in very simple terminology, for example, just for example, our school, suppose it is not affiliated with the board. ठीक है, तो काम वही कर रहे हैं, सारा कुछ वो फॉलो कर रहे हैं, बट इट इज नॉट व्हाट कैन वी से, इट कैन नॉट कंडक्ट एग्जाम्स. मान लो बोर्ड के एग्जाम्स दे कैन नॉट बी कंडक्टेड हियर, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ के बच्चों को दे वुड हैव टू गो टू सम अदर स्कूल जहाँ पर परमिशन ऑफ द बोर्ड इज देयर कि फाइनल पेपर्स दे कैन बी कंडक्टेड. ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बोर्ड बट थ्रू सम अदर पैसेज. आप नहीं डायरेक्टली कर रहे हैं, किसी और के थ्रू उसके साथ रिलेट हो रहे हैं. तो सेम थिंग इज हियर, अल्टीमेटली गोल्ड था, बट वो गोल्ड क्योंकि इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर ऑल कंट्रीज टू मेंटेन ह्यूज स्टॉक्स ऑफ गोल्ड, तो क्या किया गया? यूएस डॉलर के साथ करेंसीज वर पेग्ड, दे वर रिलेटेड. व्हाई यूएस डॉलर ओनली? कोई और करेंसी क्यों नहीं? तो इस करके नहीं, बिकॉज उस समय यूएस वाज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन कंपैरिजन, बाकियों के कंपैरेटिवली यूएस इकोनॉमी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी. तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होती है, दैट मीन्स ऑल कंट्रीज कैन ट्रेड वेरी इजीली विद दैट कंट्री, उसकी करेंसी वर्ल्ड वाइड चलती है. तो जो चीज चलती है, विच आपको याद होगा इन वन चैप्टर मनी में हमने किया था, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. एनीथिंग कैन बी टेकन एज मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पीपल. तो फिर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी यूएस डॉलर के ऊपर सबकी बन रही थी, तो दैट इज व्हाई यूएस डॉलर वाज टेकन एज द सेंट्रल फिगर या सेंट्रल करेंसी. तो ऑल करेंसीज वर फर्स्टली रिलेटेड टू यूएस डॉलर, फिर यूएस डॉलर वाज अल्टीमेटली रिलेटेड टू गोल्ड ओनली. ठीक, तो क्योंकि ब्रेटन वुड्स में ये काम हुआ था, दिस एग्रीमेंट टुक प्लेस, तो इस करके उसको नाम ही दे दिया जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम. और इट इज आल्सो कॉल्ड एडजस्टेबल पेग सिस्टम. यू मे राइट बिलो दिस, ब्रेटन वुड्स के नीचे यू कैन राइट डाउन एडजस्टेबल पेग सिस्टम. एडजस्टेबल पेग सिस्टम. ठीक है, नो नीड टू राइट, बट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. एडजस्टेबल पेग का मतलब होता है कि अगर किसी ने पैरिटी वैल्यू अपनी करेंसी के गोल्ड के यूएस डॉलर के साथ जो भी चेंज आता है या करनी है, तो थ्रू द परमिशन ऑफ आईएमएफ दोज एडजस्टमेंट्स कुड बी डन. एक यूएस डॉलर के बदले में कितने इंडियन रुपी हैं या कितने पाकिस्तानी रुपी हैं या कोई और कंट्री के हैं, उसको एडजस्टमेंट अगर करनी है तो दैट एडजस्टमेंट वाज परमिटेड, बट विद द परमिशन ऑफ आईएमएफ. तो क्योंकि एडजस्टमेंट्स वर पॉसिबल, इस करके वो एडजस्टेबल करते हैं. ठीक है, बस दिस इज ऑल अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. एट द मोस्ट यू विल गेट हार्डली अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स होंगे. 3 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा. तो यू हैव टू गिव नेम, यू हैव टू डिफाइन, देन फ्यू दीज टू सिस्टम्स इनका दे देना. बुक में मेनी अदर पॉइंट्स आर गिवन, दे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दोस पॉइंट्स. फाइन जी. उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा दिस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग and comparatively you will find it easy also. Flexible exchange rate system. Now flexible exchange rate system, before coming to this, if you remember in last class we have read about one topic, equilibrium price determination. Perfect competition में equilibrium price. So how does that equilibrium price get determined? The point at which market forces of demand and supply become equal to each other. Okay? Same thing is here. Flexible exchange rate system के according, equilibrium rate of exchange is decided या gets determined at that point
where market forces of demand for foreign exchange and market force of supply of foreign exchange, they become equal to each other. अब हमारे पास कोई कमोडिटी नहीं है, किसी चीज का प्राइस नहीं डिटरमिन कर रही. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. रेट का मतलब प्राइस ही हुआ है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो उस प्राइस को कौन डिटरमिन करेगा? टू मार्केट फोर्सेस विल डिटरमिन. वन इज मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड. तो हुज डिमांड? किसकी डिमांड? तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सिमिलरली सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमें कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम विच प्लेस, फ्रॉम विच सोर्सेज आर वी गोइंग टू गेट फॉरेन एक्सचेंज. और डिमांड का मतलब फॉर विच रीजंस वी आर गोइंग टू मेक डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. The point where both these forces become equal to each other, मतलब जैसे हमें $100 की हमारी डिमांड है तो हमें $100 ही मिल रहे हैं. कहाँ से मिलते हैं वो बाद में करते हैं, हमें $100 ही मिल रहे हैं, we are getting supply. तो both are equal to each other, तो that point will be known as this flexible exchange rate, या उसी को कह देते हैं equilibrium exchange rate, या उसी को कह दिया जाता है floating exchange rate. बुक में यू विल रीड वेरियस नेम्स आर गिवन. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या नॉर्मल रेट ऑफ एक्सचेंज, कोई भी वर्ड आ सकता है. ठीक है जी. सो दैट पॉइंट वेयर बोथ दीज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम इक्वल टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट पॉइंट माने दैट वैल्यू इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक. अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस कि डिमांड क्यों करते हैं हम लोग. You can see in the book, yes, where this is given flexible exchange rate na, in your book beta sequence is not given correctly. Flexible exchange rate के बाद आगे difference has been given flexible और fixed का. उसके बाद जाके managed floating system is given. After that ये दिया हुआ demand for foreign exchange. I am coming to this part first. We should do in sequence. यहाँ पर sequence में नहीं दिया हुआ है. ठीक है. तो demand for foreign exchange. Now very simple and easy to understand. Who makes the demand for foreign exchange? जैसे right now we are in India, तो हम किन कामों के लिए, for which reasons are we going to make demand for foreign exchange? Yes, firstly when we need to import something, तो हमें उस करेंसी में फॉरेन करेंसी पे पेमेंट करना पड़ेगा. तो उसके जैसे हम पेट्रोलियम परचेज करते हैं गल्फ कंट्री से, तो उनके वो जिस करेंसी में कहेंगे हमें उसमें पेमेंट करनी पड़ेगी. तो when imports are to be made, then foreign currency is demanded. Secondly, एक और ले सकते हैं जैसे for tourism purpose, when Indian people they have to go to या they want to go to some other country, घूमने के लिए वैसे अपना जाते हैं, तो वहां पर जाके उनकी करेंसी की रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स दैट इज अनदर रीजन फॉर डिमांडिंग फॉरेन करेंसी. फॉर टूरिज्म पर्पस वी नीड, वहां जाके इंडियन रुपए नहीं चलेंगे, वहां जाके हमें उनकी करेंसी में ही खर्च करना पड़ेगा. ठीक है. तो वहां पर टूरिज्म पर्पस के लिए वी मे नीड फॉरेन करेंसी. देन इंडियन स्टूडेंट्स दे आर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी पर्पस, वहां जाते हैं तो वहां जाके उनकी करेंसी में खर्च करना पड़ेगा. वहां पर फी की पेमेंट, अपना रहने का खर्चा, वट वो दे हैव टू स्पेंड इन दैट दोज टर्म्स. कनाडा में है, अमेरिका में, कहीं पर भी है, उनकी करेंसी में खर्च करना है. तो फॉर स्टूडेंट्स पर्पसेस ये भी लिख सकते हैं. देन अनदर इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड. तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब इंडिया से अगर कोई भी गिफ्ट की फॉर्म में, डोनेशन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में इफ मनी इज टू बी सेंट अब्रॉड, कहीं पर भी भेजना है, तो भी फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड है उस कंट्री की, या वो कंट्री जिस करेंसी में कहे कि मैं इसमें पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वो करेंसी रिक्वायर्ड है हमारे लिए. बट ऑब्वियसली वो इंडियन रूपी तो नहीं है, और कोई भी हो सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट है परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज. तो अगर इंडियन पीपल दे वांट टू बाय सम एसेट, कुछ अपना प्रॉपर्टी वहां पे बनाना चाहते हैं. आपने कई एक बड़ा फेमस सुना होगा, कई सारे जो फिल्म स्टार्स है वो दुबई में अपने फ्लैट्स ले लेते हैं. तो अगर वहां जाके अपने फ्लैट लिए, वहां जाके अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, या इंग्लैंड में अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो जो भी उन्होंने खर्च किया है दे वुड हैव स्पेंट या दे आर सपोज टू स्पेंड make payment of that property in terms of the currency of that country. कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदना है तो उनके टर्म्स में देना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन. एक और आप लिख लो यहाँ पर, इट इज नॉट रिटन, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंट्रीज. This point is not given in the book. You may write down. We can make this point also. क्या बोला बेटे बनी? For making, yes, for making investment in other countries. ठीक है. तो जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑब्वियसली जहां करनी है उस कंट्री की करेंसी चाहिए.
अच्छा, एक और पॉइंट इज नॉट गिवन। अगर इंडिया ने किसी और कंट्री से पहले का लोन लिया हुआ है, अब उसकी पेमेंट करनी है, तो जब पेमेंट करनी है उसके लिए भी फॉरेन करेंसी चाहिए। तो वी कैन मेक पॉइंट हियर, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स या लोन्स एंड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट. So we have written 2 points additionally, एक for making investment, second for this repayment of loans and interest payments. ठीक, तो ये है. Now coming to this point, speculation. Speculation का meaning क्या होता है? It is written here, when people want to make gains from appreciation of currency. इसका simple terms में if we want to understand तो ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आप या मैं, हम में से कोई भी आज की डेट में गोल्ड खरीद ले, ये इंटेंशन हो दिमाग में, इंट्यूशन हो विद एक्सपीरियंस कि आने वाले 15 डेज में या 1 मंथ में गोल्ड वैल्यू इज गोइंग टू शूट अप, बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं आज के दिन में, हम जैसे भी मैनेज करके, जैसे भी किसी तरीके से अभी मनी इकट्ठा करके हम आज की डेट में गोल्ड परचेज कर लेते हैं, एंड देन वी कीप ऑन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। आज अगर 50,000 का लिया है तो हमें लगता है कि महीने के बाद 70,000 इसके मिल सकते हैं। तो दैट मीन्स वी आर स्पेकुलेटिंग। स्पेकुलेटिंग मतलब अंदाजा लगाना, असेस करना विद, एक होता है ना इंट्यूशन, होता कुछ नहीं है बट अपने दिमाग में कुछ बात ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल या इट मे बी पॉसिबल। तो वो विद एक्सपीरियंस, जो कई लोगों को हैबिट होती है इस तरह के कामों में, जैसे आमतौर पे शेयर्स में पैसे लगा लेते हैं कि ये कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में, तो इसमें मनी लगा लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मली लोग जो होते हैं वो शेयर्स में पैसे लगाते हैं। तो दैट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग ओनली फॉर दिस पर्पस कि स्पेकुलेशन के लिए करें। वो पता नहीं होता कि वैल्यू में इंक्रीज और वैल्यू में कम डाउन ऑल्सो। तो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श के ऊपर भी आ सकते हैं, दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है। बट सम पीपल इफ दे डिमांड मनी फॉरेन करेंसी फॉर दिस पर्पस, तो वो भी एक डिमांड का एक सोर्स हो सकते हैं कि आज यूएस डॉलर लेके रख लेते हैं, 74 रुपीज का मिल रहा है, हो सकता है आफ्टर 15 डेज ये 74 की बजाय 80 रुपीज में बिक जाए। दैट मीन्स फॉर स्पेकुलेशन पर्पस वी आर मेकिंग डिमांड ऑफ डॉलर्स इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। तो उसके लिए भी कोई लोग डिमांड कर सकते हैं। तो ये ऑल दीज पॉइंट्स दे डू नॉट मीन दैट ऑल पीपल आर डिमांडिंग फॉर द सेम रीजंस। आपकी डिमांड किसी और कारण के करके हो सकती है, मेरी किसी और रीजन के करके हो सकती है, सम अदर पीपल मे डिमांड फॉर सम अदर रीजन, क्योंकि वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर इन द सोसाइटी, अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। बट कलेक्टिवली इफ वी वांट टू स्टडी तो वी कैन मेंशन ऑल दीज रीजन। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस ऑफ दिस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट यू कैन कम टू नेक्स्ट पेज। आगे दिया हुआ है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो वहां पर यू कैन राइट सोर्सेज ऑफ सप्लाई। सोर्सेज का मतलब कि हमें कहाँ से मिलती है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, कहाँ से अगर डिमांड तो हम कर रहे हैं, बैठे बैठे डिमांड कर रहे हैं, बट विच आर द पॉइंट्स विच कैन मेक अस द सप्लाई ऑफ दैट फॉरेन करेंसी। अब वो ले लेते हैं। अब हमें मतलब इंडिया को फॉरेन करेंसी कहाँ से मिल सकती है। नंबर 1, एज यू टोल्ड, पहले इंपोर्ट करने के लिए डिमांड करते हैं, तो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी आएगी। एक्सपोर्ट करने का मतलब वी गेट रिसीट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो व्हेन वी मेक एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज, तो देन वी गेट द फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। जितने, तभी बोलते हैं ना ज्यादा एक्सपोर्ट करने चाहिए, तो ज्यादा एक्सपोर्ट करने से हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, उसको सेव किया जा सकता है, फर्दर फिर इन फ्यूचर अपने कामों के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट्स आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई, उससे हमें मनी मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है। सेकेंड इज, जैसे इंडियन पीपल फॉर टूरिज्म पर्पज दे आर गोइंग अब्रॉड, तो सिमिलरली फॉरेनर्स कैन ऑल्सो कम टू इंडिया फॉर टूरिज्म पर्पज। यहाँ पर वो भी तो आते हैं ना घूमने के लिए, कुंभ मेला लगता है तो बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं देखने के लिए। इकोनॉमिक टूरिज्म, अपने थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था, वो मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, यहाँ इलाज करवाते हैं, या वैसे ही अपने बिजनेस पर्पजेज के लिए आते हैं, वैसे घूमने के लिए, वैसे अपना टाइम पास, कुछ भी फॉर लेयर पर्पज कुछ भी आते हैं। तो जैसे भी रीजन के करके आते हैं, तो यहाँ आएंगे, यहाँ के होटल्स में रहेंगे, यहाँ के ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, पैसे खर्चेंगे, तो वो अपने साथ लेके आएंगे। ऑल दो बाद में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, बट लेके तो अपनी करेंसी ही आएंगे। ठीक है, तो व्हेन फॉरेनर्स कम टू इंडिया फॉर टूरिज्म पर्पस, दे गिव अस, they provide us the this foreign currency. ठीक है, similarly when foreign investment, other countries make investment in India, अमेरिका यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे, इंग्लैंड इन्वेस्ट करे, चाइना इन्वेस्ट करे, सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करे, कोई कंट्री इन्वेस्ट करे, तो वो अपनी करेंसी लेके आएंगे।
तभी बोलते हैं ना FDI नीड्स टू बी प्रमोटेड। बार बार ये आपने न्यूज में सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी होनी चाहिए बिकॉज अवर कंट्री हैज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो वो अपने साथ पैसा लेके आए तो यहाँ इन्वेस्ट करें। तो व्हेन फॉरेनर्स मेक इन्वेस्टमेंट या दे डिसाइड टू मेक इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है रेमिटेंसीज। रेमिटेंसीज या सीधा यू कैन राइट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक, तो व्हेन फॉरेनर्स सेंड मनी टू इंडिया इधर फॉर देयर रिलेटिव्स और देयर फैमिली मेंबर्स, कोई गिफ्ट भेजते हैं, कोई डोनेशन भेजते हैं, या वैसे मनी वैसे ही भेजते हैं, अपने घर वालों को पीछे भेजते हैं, तो दैट इज अ बिग सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। शायद आपने पढ़ा वो न्यूज में, जो केरला स्टेट है हमारे कंट्री की, साउथ इंडिया में केरला स्टेट है, पंजाब स्टेट है खास करके, वैसे तो सभी स्टेट्स में से लोग गए हुए हैं बट ये दो में ज्यादा गए हुए हैं। तो जो केरला वाले लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज में बहुत सारा पैसा वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। ऐसे ही जो पाकिस्तान कंट्री है वहाँ के बहुत सारे लोग वो सऊदी अरेबिया में गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी का स्टॉक है उसका मेजर प्रपोर्शन इज कमिंग फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसीज, वो जो पाकिस्तानी लोग वहां जाके पीछे अपने घरों को भेजते हैं। तो इसका मतलब कि रेमिटेंसीज आल्सो कंस्टिट्यूट ए मेजर पार्ट, स्पेशली फॉर दोज कंट्रीज जिनका फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स ही ये है। एक्सपोर्ट वगैरह कम है वहाँ पे, बाकी ये काम धंधे कम है, बट वो उनके लोग अपने घरों को पैसा भेजते हैं, तो ये भी एक सोर्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। तो जैसे पहले बताया, जो लोग इंडियन करेंसी, जैसे इंडियन लोग डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की स्पेकुलेशन के लिए, सेम वे फॉरेनर्स कैन आल्सो मेक डिमांड ऑफ इंडियन करेंसी। तो वो उसके लिए पहले अपने फॉरेन करेंसी में इंडियन रुपए को खरीदेंगे, ताकि उनको लगता है कि हो सकता है रुपए की वैल्यू लेटर ऑन इंक्रीज हो जाए। तो अगर वो खरीदते हैं स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, तो देन दे आल्सो दे आर मेकिंग सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। बोथ वेज है, स्पेकुलेशन जरूरी नहीं इंडियन लोग ही करते हैं, स्पेकुलेशन सभी कंट्रीज के लोग कर सकते हैं। तो अगर वो इस तरह से करते हैं, फॉरेन करेंसी दे के रुपए को खरीद रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज आल्सो फॉर द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट टाइम दैट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज। फिर एक और हो सकता है, ये वैसे इन्वेस्टमेंट में ही आ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में FDI। आप सीधा भी लिख सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या सीधे ही फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। फिर एक और पॉइंट है विच आई हैव रिटन, दिस डिपॉजिट्स मेड बाय NRIs। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियंस मनी भेजते हैं, यहाँ के बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, तो अगर भेजते हैं फॉरेन कंट्री से, तो वो भी एक सोर्स हो सकता है। डिपॉजिट्स मेड बाय NRIs इन इंडिया, तो वो भेजेंगे अपनी फॉरेन करेंसी में, तो हमारे लिए तो वो सोर्स ऑफ सप्लाई है। ठीक है, so these 4-5 are the sources of supply of foreign exchange. ठीक, now we have to decide कि where this equilibrium take place. So let me check the time, can we complete it or not? Only 3 minutes are left. Okay, anyhow you can draw the axis, we can draw the diagram, explanation will be made tomorrow in case. You can draw the diagram. Foreign exchange rate और प्राइस ऑफ, ये जरूर लिखना है बिकॉज कई बार इससे हमें समझ नहीं आता, तो पूरा लिख ले, हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए देते रहिए। प्राइस ऑफ $, in terms of Indian rupee, in terms of Indian rupee, या सीधा ही फॉरेन एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इधर यू कैन राइट रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या रेट ऑफ एक्सचेंज, और प्राइस ऑफ $, इन टर्म्स ऑफ इंडियन रूपी। ठीक है, बिलो दैट वी हैव टू राइट डिमांड फॉर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ $। इंडियन रूपी नहीं है, डॉलर की डिमांड, डॉलर की सप्लाई, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव लेफ्ट वन पॉइंट, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Just like there is negative relation between price of a commodity and its demand, same relation is there for in case of this foreign exchange. Higher the price of foreign exchange, lower will be its demand. Lower the price of foreign exchange, more will be its demand. Okay? And similarly, as we have done in case of supply, law of supply के positive relation between price and quantity supplied, same thing is here.
Higher the value of foreign exchange, more will be its supply. Lower the value of foreign exchange, lesser will be its supply. Direct relation between supply and price of foreign exchange and supply, and inverse relation between demand and its price. Okay? So accordingly, we completed tomorrow. Okay? इतना आपने घर पे रीड कर लेना.